Welcome to the another session with BioVerse with Pallavi, your go-to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for board and NEET examination. Imagine a library that consists of more than 200 million books, but you do not have any shelf, any sections, no labeling, no catalog, anything. Will you be able to find a book of your choice? Probably the answer is no. In the same manner, nature is also operating. It consists of millions of organisms of varied type that is present on this planet Earth. So, students, today in this session, we are going to discover and know about the taxonomic hierarchy and taxonomic categories that help the scientists to explore the different and vast variety of biodiversity that is present on this planet Earth. Taxonomic hierarchy. When we are talking about that, we need to understand it means that grouping of things ranked one above the another. Classification is not a single step process but involves the hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. Each of these ranks they form the part of the overall taxonomic arrangement that we call as the taxonomic hierarchy. So, all in all, when we are talking about the taxonomic hierarchy, what we are doing is we are doing the arrangement of the living organisms. Now, when the arrangement of the living organisms has been done, children, there needs to be a certain criteria. So, the criteria that we are talking about is the similarities and dissimilarities. For example, if you're sitting in a room and you want to talk about what different things are there. So, what you're going to do is you are going to find out the similarities and dissimilarities. For example, the room consists of, even if your classroom consists of all the wooden things, all the things that are electronic, all the things that are being made up of paper. So this is what? This is your categorization. And now on the basis of the categorization, you are placing the things into different hierarchy. So when we talk about the similarities and the dissimilarities, उसमें हम चीज़ों को फिर एक सक्सेसिव लेवल्स में डालते हैं और यही बेटा पार्ट बन जाता है हमारे पास टेक्सोनॉमिक हायरार्की का. Now, moving on to the taxonomic categories. अब उस taxonomic hierarchy में जो हमने सक्सेसिव लेवल्स की बात करी थी वो सक्सेसिव लेवल्स हमें कौन बता रहे हैं वो हमें कैटेगरीज बता रही हैं. Now, these successive levels they start right from the species and they move on till the kingdom. Let us see each one of them one by one. Species is the basic taxonomic unit in classification of plants and the animals that you need to remember. So we can say that it is the lowest taxonomic category. Now, let us see an example of the taxonomic category that is species. जैसे कि हम बात करते हैं पोटैटो. अब पोटैटो मेरे पास क्या है एक स्टेम ट्यूबर है. तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसका हमने साइंटिफिक नेम वी आर गोइंग टू गिव इज सोलेनम ट्यूबरोसम. और ये हमारे पास सोलेनम ट्यूबरोसम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरलाइन देम सेपरेटली. और ये ट्यूबरोसम इसे बनाता है स्पेसिफिक, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं स्पीशीज. ना स्पीशीज तो हमारे पास बहुत सारी हो सकती हैं बट उन स्पीशीज में आपस में कुछ सिमिलैरिटीज भी तो होंगी. So when we talk about genus, here a group of related species which have more characteristic in common in comparison to the species of the another genre is being kept. Let us see one example. हम वही पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं और पोटैटो का जो जीनस है हम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इट इज सोलेनम ट्यूबरोसम. बट इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है ब्रिंजल. और ये जो ब्रिंजल है
इसका भी साइंटिफिक नेम में जीनस सेम हो जाएगा, दैट इज सोलिनम। बट यहाँ पे जो स्पीशीज है दैट बिकम्स मेलॉन्जिना। तो इंडिविजुअली दे हैव differences, but because of the certain kind of the similarities हमने इसे सोलिनम ट्यूबरोसम बना दिया. So this is how when we talk about the genus and the species. In the same way children, when we are talking about, हम बात करते हैं lion की. तो lion हमारे पास क्या है scientific name? It is Panthera leo. बट जब हम बात कर रहे हैं टाइगर की, और लायन और टाइगर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, जिसके बेसिस पे हमने इन्हें क्या कर दिया है, जीनस सेम रखा है, दैट इज पैंथेरा. बट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन काइंड ऑफ डिसिमिलैरिटीज हमने नाम दे दिया पैंथेरा टिग्रिस. आई होप इट इज क्लियर. नाउ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर जीनसेस जिसमें कि बहुत स्मॉल नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हैं एज कंपेयर टू द जीनस एंड द स्पीशीज. एक एग्जांपल लेते हैं. हम डेली अपनी डाइट में एज एन इंडियन हम पल्सेस खा रहे हैं, हम पी खा रहे हैं जिसे मटर बोलते हैं, वी हैव सोयाबीन, और ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं जिस फैमिली में आती हैं उसका नाम है फेबेसिए. ये पहले इसको लेग्यूमिनेसिए बोलते थे, क्योंकि वेदर आई टॉक अबाउट पल्सेस, पीस, सोयाबीन्स और एनी टाइप ऑफ बीन्स, ये सब कैसे हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं. और लेग्यूमिनस प्लांट की एक बात खासियत होती है कि इनके पास होता है पॉड. उस पॉड के अंदर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है और उसी में उनके सीड्स होते हैं. टुगेदर विद दैट हमारे पास जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके पास रूट नोड्यूल्स होगा. उन रूट नोड्यूल्स में उनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे, उनके पास कंपाउंड लीव्स होंगी जिनके पास स्टिप्यूल्स होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पल्सेस, पीस, सोयाबीन्स इन सबको फेबेसिए में रख दिया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीट, राइस, मेज. तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये सारे के ही सारे मोनोकॉट्स हैं. ये ग्रासेस की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके पास पैरेलल वेनेशन दिखता है. इनका जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस टाइप का है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इनको जिस फैमिली में रखा वो नाम बन गया पोएसिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन कि हम किन बेसिस पे इनको एक कॉमन फैमिली, जीनियस या स्पीशीज में रखते हैं. ना मूविंग ऑन, ऑर्डर. अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज form an order which shows close resemblance in their certain fundamental features. अब let us take an example. जैसे कि हमारे पास प्राइमेटा में हमारे पास ऑर्डर है प्राइमेटा, और इस ऑर्डर प्राइमेटा में हमारे पास ह्यूमंस भी आ रहे हैं. ह्यूमंस के अलावा हमारे पास मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन और ऐसे बहुत सारे जानवर आ रहे हैं. तो इनके अंदर एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हमने इन्हें ऑर्डर प्राइमेटा में डाला. अब वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रही कि जब हम बात करते हैं प्राइमेट्स की, तो प्राइमेट्स हमारे पास वो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रेजेंट है अपोजिबल थंब, और इनका जो फेस है वो कैसा है, फॉरवर्ड है, सामने की तरफ से प्रेजेंट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हमने इन्हें क्या कर दिया है, डाल दिया है ऑर्डर प्राइमेटा में. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि ऑर्डर प्राइमेटा में डालने का सोल रीज़न ये था क्योंकि इनके पास क्या है, ब्रेन कैपेसिटी है चीज़ों को समझने के लिए, करने के लिए. इनके पास अपोजिबल थंब प्रेजेंट है. इनका जो चेहरा है वो फॉरवर्ड लीनिंग है, आगे की तरफ प्रेजेंट है. फॉरवर्ड फेसिंग आईज हैं. वेल डेवलप्ड ब्रेन है. अब यहाँ पे स्नाउट जो चीज़ हमने देखी थी एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, वो इनके पास रिड्यूस हो चुकी है और इनकी डिपेंडेंस अब आईज पे या विजन पे ज़्यादा बढ़ गई है. इसलिए इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमने ऑर्डर प्राइमेटा में डाल दिया. नाउ क्लास, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. अब जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो हम अपने ही बात कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास मेमेलिया. और क्लास मेमेलिया में हमारे पास बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं.
क्यों है? पहला तो एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास हम ह्यूमंस हैं, डॉग है, कैट, काउ, then even monkey, chimpanzee, gorilla, gibbon. We have so many kind of organisms in kingdom class Mammalia. अब इनमें ऐसी कौन सी खासियत थी कि जिसके बेसिस पे हमने इन्हें क्लास मेमेलिया में डाला? तो वो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, जिनकी बॉडी हेयर से कवर्ड है, उनके पास अब एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है क्योंकि उन्हें अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। वो वार्म ब्लडेड हैं, उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उनको एक कैटेगरी में डाल दिया और उस कैटेगरी का नाम हमने रख दिया मेमेलिया। Now, children, in the same manner, we are talking about division and phylum. They are next to the kingdom and they represent organisms belonging to different classes. Let us take an example. When I am talking about division, ये word division हम हमेशा यूज करेंगे plants के लिए, और जब भी हमें बताना होगा animals के बारे में, we are going to use the word that is phylum. ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि डिवीजन और फाइलम वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे डाइकोटिलिडनस, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स की, जिनके पास एक कोटिलिडन है वो मोनोकॉट है, जिनके पास 2 कोटिलिडन है वो डाइकॉट है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट को हमने जो डिवीजन दी है दैट इज एम्ब्रियोफाइटा। क्यों हमने इन्हें एम्ब्रियोफाइटा में डाला? क्योंकि they are producing the flower. Ovules are being enclosed within the ovary, and after the fertilization, this ovary forms the fruit that is bearing the seed, जो कि बनी है ओव्यूल से। साथ ही साथ इनमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया कि प्लांट्स को एम्ब्रियोफाइटा में डाल दिया, जिसमें जितने भी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स आ जाए। ऑन द सेम बेसिस हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, उन्हें हमने कॉर्डाटा बोल दिया। और जिनके पास एंडोस्केल्टन में नोटोकॉर्ड नहीं थी वो बन गए हमारे पास नॉन कॉर्डाटा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इनको भी यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, वेदर इट इज नॉन कॉर्डाटा और इट इज कॉर्डाटा। ठीक है ना? जिस तरीके से स्पीशीज हमारे पास लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन था, वहीं पे हमारे पास किंगडम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बन जाता है। लेट अस सी हाउ। हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की। अभी हमने बात करी थी टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। ना चिल्ड्रन, हम जब टेक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे हैं तो इतना तो आपको भी अभी ये पढ़ के समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट की। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ रैंडमली अरेंज है, यहाँ पे चीज़ें जितनी भी हैं देयर इज सम काइंड ऑफ सीक्वेंस इन इट। तो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज रैंक्स फ्रॉम द लोअर कैटेगरी टू दी हाईएस्ट कैटेगरी। तो जब हम लोएस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, जस्ट रिकॉल अभी हमने पढ़ा है दैट इज स्पीशीज। और हाईएस्ट कैटेगरी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी? यस, दैट इज किंगडम। ना तो फिर हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? सो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हमारे पास बन जाती है एक इंडिविजुअल रैंक विच इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। ओके, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सक्सेसिव लेवल्स में चीजों को अरेंज करते हैं। ऑफ द कैटेगरीज कि ये कैटेगरी ऊपर आएगी, नीचे आएगी तो किस रीजन, किस बेसिस के बीच में आएगी। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर रैंक की बात करते हैं। मींस
ईच रैंक इज कंसिडर्ड, और उस हर एक रैंक को हम नाम जो देते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेक्सॉन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, इसे हम बोलते हैं टेक्सॉन। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट्स ओनली एंड ओनली वन कैटेगरी at a time. Okay. Now, when we are talking about the taxonomic hierarchy, what we see is it starts from the species, moves up, that is genus, followed by family, order, class, phylum or division, whatever we are talking about, and finally the kingdom. So that are the basic difference between taxonomic hierarchy and taxonomic category. Okay, children. My question to you all is, can you arrange these categories that we have studied right from the species till the kingdom according to your understanding from the lowest rank to the highest one? Just take a minute and let's see what you have written after that. Okay, so let's start, children. The highest category is the kingdom, followed by either it could be phylum in case of animals, or it could be the division in case of your plants, followed by class, order, family, genus एंड स्पीशीज। तो जब हम जीनस और स्पीशीज की बात बेटा करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की तो हम ऊपर नीचे लिखेंगे, बट जब हम साइंटिफिक नेम की बात करेंगे जीनस के जस्ट बगल में स्पीशीज नाम लिखा जाएगा। नाउ जब हम बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की तो इसमें हम क्या देखते हैं, एज वी आर मूविंग अक्रॉस, जैसे कि हम बात करते हैं किंगडम से स्पीशीज की, तो जब हम किंगडम से स्पीशीज आते हैं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाती हैं, बहुत नैरो हो जाती हैं, है ना। और जैसे ही हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ भागते हैं, स्पीशीज टू जीनस टू फैमिली एंड फाइनली टू द ऑर्डर, वी सी दैट कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सिमिलैरिटीज कम होंगी, डिसिमिलैरिटीज भी इंक्लूडेड हो जाएंगी, तो हमारे पास डिफरेंट रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एंड इन द सेम मैनर जब हम बात करते हैं कि हम किंगडम से नीचे की तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स द स्पीशीज, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी इंक्रीज। अब ये इंक्रीज किस में होगा, इंक्रीज इन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड वाइस वर्सा इट कैन ऑल्सो बी सेड कि जब हम स्पीशीज से जा रहे हैं किंगडम की तरफ तो हमारे पास डिसिमिलैरिटीज बढ़ रही हैं, जब हम किंगडम से स्पीशीज आ रहे हैं तो हमारे पास सिमिलैरिटीज बढ़ रही हैं। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, and when we talk about the lowest category, or we can use the word fundamental, so this in that case becomes your species. I hope each and every category with the taxonomic hierarchy and these important points are understood to all of you. Moving on further, children, let us see few examples. हमने बात कर ली कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं, क्यों उनमें किसी को रखा जा रहा है, कैसे ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ योर टेक्सोनॉमिक हायरार्की। अब हम दो एग्जाम्पल से इसको पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे हाउस फ्लाई का, जो कि एक एनिमल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सेकेंड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक प्ले सी ऑफ इज वीट। वीट हमें जो है देखेगा एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट। ओके, सो जब हम बात करेंगे, सो चिल्ड्रन, किंगडम, फाइलम,
class, order, family, genus, species. This is how we are going to write the taxonomic hierarchy and representing each category. क्योंकि हाउस फ्लाई हमारे पास एक एनिमल है तो सबसे पहले तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ किंगडम एनिमेलिया। हाउस फ्लाई के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इसलिए एक क्लास बन जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास हमारा हो जाएगा इंसेक्टा। ना अब हमने बात करनी है ऑर्डर की। सो द ऑर्डर वुड बी डिप्टेरा, family would be Muscidae and finally इसका जो scientific name है including the generic epithet that would become Musca domestica. This is how you children write the name and you have to underline it separately. अगर मैंने बोला होता कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हाउसफ्लाई का नाम लिखिए देन यू वुड हैव सिंपली written it like this. Genus के adjacent you have to write the word domestica. I hope you have understood. This is all the taxonomic hierarchy. These are all the taxonomic categories individually and this is how you write the binomial nomenclature. Then, in the same way children, you are going to have kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Just take few seconds and see whether it is written in the correct way or not. अभी हमने पढ़ा है बेटा कि जब भी हम प्लांट्स की बात करेंगे तो हम नाम जो है फाइलम हटा देंगे। तो फाइलम की जगह जो हम दूसरा नाम देने वाले हैं that is going to become what? Yes, that is going to become your division. So I hope you have understood कि कब फाइलम यूज करना है और कब वर्ड डिवीजन यूज करना है। क्योंकि ये एक प्लांट है सो किंगडम वुड बिकम योर प्लांटे। उसके अलावा ये हमारे पास एक मोनोकॉट है तो इट विल बिकम एंजियोस्पर्मे। सो डिवीजन हमारे पास एंजियोस्पर्मे है। मोनोकॉट है तो यहाँ पे बन गया क्लासेस मोनो कोटिलिडने and your order is going to be Poales. Family is Poaceae क्योंकि this all belongs to the family of grasses. And finally the genus is going to become Triticum aestivum. So this is how you are going to write the taxonomic hierarchy that are showing you the successive levels of taxonomic categories. And in the same way बेटा हम यहाँ पे scientific name जिसे हम binomial nomenclature के according लिखेंगे इसको इस तरीके से represent करेंगे। I hope you have understood this. So this is how what we have talked about the taxonomic hierarchy, the taxonomic category and few examples of this in today's lecture. Students, if you have been finding my videos useful and helpful, don't forget to like, share and subscribe and do comment your answers in the comment section. The question for today that I am giving you is हम species को basic unit of classification क्यों कहते हैं? Why is the species considered as the basic unit of classification? And I would request you all कि इस session को समझने और इसके through आपको जो understanding develop हुई है, write your answers in the comment section and I'll be giving you the right guidance. Until then, keep learning, keep exploring and stay curious. I'll see you in the next session of BioWords with Pallavi.